Romans chapter 8 verse 6 said, रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 6ठे वाक्य में लिखा हुआ है, to be carnally minded is death, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, and to be spiritually minded is life and peace. लेकिन आत्मा पर मन लगाना जो है जीवन है और शांति है। Shalom. शालोम। Good morning. गुड मॉर्निंग। Welcome to this devotional in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आप सभी का स्वागत है मसीह यीशु के नाम By से। His grace, we are embarked on a very important series, और उनके अनुग्रह ही से एक महत्वपूर्ण सीरीज को हम देख रहे हैं and we are treating a very important subject. और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम ले रहे हैं And the topic is stress. और शीर्षक है तनाव। Each one of us go through stress in one way or the other. हम सभी लोग जो है तनाव से गुजरते हैं। We do not know how to overcome the stress. हम समझ नहीं पाते हैं कि इस पर कैसे जय प्राप्त करें। We're going to look at the life of Jesus, हम यीशु मसीह के जीवन को देखने वाले who is हैं, the author and the finisher of our race. जो हमारे इस दौड़ के शुरुआत भी है और अंत भी है। Each one of us are called to model after him. और हम हर एक को बुलाया गया है कि हम यीशु की नकल करें। How he overcomes stress during the stressful times of his और ministry. कैसे उन्होंने अपनी सेवकाई में कैसे उन्होंने तनाव का सामना किया। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, let me tell you this very मैं clearly. आपसे ये कहूँ स्पष्ट रीति What से, Jesus did not go through, जो यीशु मसीह जिन चीजों से नहीं गुजरे, you will never go through. आप भी वो चीजों से नहीं गुजरोगे। Jesus went through horrendous times. और यीशु मसीह जो है कठिन समयों से गुजरे Jesus went through stress that you cannot even imagine. और ऐसे तनाव से गुजरे जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। He overcame it successfully because he based his ministry on the 8 principles, strongest principles on stress. और सफलपूर्वक वो बाहर आए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को 8 सिद्धांतों पर आधारित किया जो तनाव से जुड़ा हुआ है। Yesterday we saw the first principle, कल हमने पहले सिद्धांत को देखा and the number 1 principle is that Jesus knew who he was. और पहला सिद्धांत ये है कि यीशु मसीह बिना कोई संदेह के जानते थे कि कौन वो है। He had no ambiguity about his identity उनके पहचान को लेकर जो है उनमें कोई दुविधा नहीं थी, because he did not have any doubts about who he was. क्योंकि वहां पे उनको कोई संदेह नहीं था कि कौन वो है लेकर। He was peaceful when he was handling all the stress that was coming his way. तो जो तनाव उनके जीवन में आ रहा था उनको वो बहुत ही शांतिपूर्वक जो है हैंडल कर रहे थे। Today we are going to look at the second principle. आज हम दूसरे सिद्धांत को देखने Let वाले me हैं। tell you, it's a very, very important principle. मैं आपसे कहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत I है। want us to open our Bibles to John chapter 5 verse 30. हम जो है पवित्र शास्त्र में देखेंगे यूहन्ना की किताब I'm- 5वां अध्याय और 30वां वाक्य। I'm reading for you from the NKJV version. It says, I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous. And then further down, he says something which is very important for our learning today. It says, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you closely take a look at this particular verse, अगर आप जो है इस वाक्य को नजदीकी से देखते हैं you will know that Jesus was not trying to please anybody else except the Father who sent him. तो आप ये जान लोगे कि यीशु मसीह किसी को प्रसन्न करना नहीं चाहते थे, केवल उनको जिन्होंने उनको भेजा था। Jesus clearly know who he was pleasing. और यीशु मसीह जो है स्पष्ट रूप से जानते थे कि किसको वो प्रसन्न कर रहे हैं। It was God and God and God and God, period. केवल परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर, पूर्ण विराम। And that is why in Matthew chapter 3 verse 17, God too said, this is my son in whom I am well pleased. और इसीलिए मत्ती के तीसरे अध्याय के 17वें वाक्य में जो है परमेश्वर यीशु को लेकर ये कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। I want us to learn 3 important things. 3 महत्वपूर्ण बातों को सीख लीजिएगा। If we lose sight on who we are pleasing, these 3 things can happen to us. अगर हम जो है अपने ध्यान को भटका देते हैं और हम जो है जानते नहीं है किसको हम प्रसन्न कर रहे हैं तो ये 3 बातें हमारे साथ हो सकती Number है। 1, criticism may come our way और पहली बात जो है ये हो सकता है कि निंदा के शिकार हम हो जाए, because we will be overly concerned
about what others think of us. क्योंकि फिर हम हमेशा ये ही सोच में रहेंगे कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। So when you are trying to please somebody, तो जब आप किसी को प्रसन्न करना चाहते you are हैं bound to fail and fall. तो निसंदेही जो है आप निराश होंगे, हार मान जाएंगे। I'm telling you, criticism will come your way invariably. मैं आपसे कहूं कि निंदा तो होगी, आएगी। Number two thing which is very, very clearly can be seen in our lives और दूसरी बात जो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं हमारे जीवनों में, is competition. ये है स्पर्धा। Competition is because we wanted to be ahead of all others. ये इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दूसरों से आगे हम हो। We will be looking to cut others out. हम दूसरों को काटना चाहते हैं, We will be looking to pull others हम down. दूसरों को नीचे खींचना चाहते हैं। So when we try doing that, तो जब हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं invariably that we tend to fall. तो हम गिर जाते हैं। We will fall in the sight of people. हम लोगों की नजर में गिर जाते We हैं will fall in the sight of God और Himself. परमेश्वर की नजर में भी गिर जाते हैं। Also, we will fall in our own sight. अपने खुद की नजर में भी गिर जाते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, never ever try to do that. कभी भी ये करने का प्रयास मत करिएगा। Competition is a wrong spirit to adopt. और स्पर्धा जो है, स्पर्धा की दुष्ट आत्मा जो है, इसको आप गले न लगाइएगा। Number three, very important C I want us to learn this तीसरी morning. महत्वपूर्ण बात हम चाहते हैं सवेरे के वक्त हम You सीख लें। invariably come in conflict with others दूसरों के साथ जो है आप झगड़ा और वाद विवाद में आ जाते हैं, because you're trying to please somebody क्योंकि आप किसी को प्रसन्न करने के प्रयास and में हैं somebody else also may be trying to do और that. कोई और भी ये कर रहा है शायद। You will be constantly in conflict with somebody who's trying to please the one whom you are trying to please. और आप जो है उसके साथ में झगड़ा और वाद विवाद में बने रहोगे, जो व्यक्ति जो है वही इंसान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है जिसको आप प्रसन्न करना you'll be चाहते हैं, constantly threatened. और निरंतर जो है आपको धमकी दी जाएगी And then in the course that you will end up losing your way. और आगे चलकर जो है रास्ते से आप भटक जाओगे। I want us to look at the life of a mighty man called Nehemiah. मैं चाहता हूं कि हम एक सामर्थी व्यक्ति के जीवन को देखें जिनका नाम है नेहमाया। He was not a prophet. वो एक नबी नहीं थे, He was not a priest. वो एक याचक नहीं थे, He was not a king. वो एक राजा भी नहीं He थे, was simply an administrator. वो एक कामकाज को देखने वाला एडमिनिस्ट्रेटर थे। Rather somebody who's a bearer, cupbearer in the presence of the king. राजा की उपस्थिति में वो राजा के प्याली को ढोता था। He took up the responsibility of building the walls of Jerusalem. नेहमाया ने जिम्मेदारी ली कि यरूशलेम की दीवार को वो बनाएगा। He did not want to please anybody. He had his focus on God. वो किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहता था, उसका ध्यान परमेश्वर पर था। There were invariably many who came his way, और उसके रास्ते बहुत सारे लोग आड़े आए, but he did not fall. पर वो गिरा नहीं। He kept on looking unto the वो Lord. यहोवा की ओर देखता रहा। He was looking to please God. वो यहोवा को प्रसन्न करना चाहता था, Because he was doing that, क्योंकि वो ऐसा करना चाहता that था। is why in 52 days that he could manage to finish building the wall. इसीलिए तो 52 दिनों में उन्होंने उन दीवारों को बनाया। Look at the Daniel. Look at the man called Daniel. आप डैनियल नामक पुरुष को देखिएगा। Shadrach, Meshach, and Abednego. शद्रक, मशक, अबेदनेगो, These were amazing people, अद्भुत जन, godly people, दैविक जन, placed in the world दुनिया में रखे हुए थे at उनको, the highest places. और दुनिया में ऊंचे स्थानों में ये थे। Daniel was the prime minister. डैनियल जो है वो प्रधानमंत्री थे, Shadrach, Meshach, and Abednego were over the provinces. और शद्रक, मशक, अबेदनेगो को क्षेत्र दिए गए थे देखने के लिए। Imagine what kind of a stress that these men may be facing every single day. आप इसकी कल्पना करें कि ये पुरुषों ने किस प्रकार के तनाव का अनुभव किया होगा दिन प्रतिदिन। They did not flicker their eyelids. लेकिन उन्होंने अपने आंखों को इधर उधर नहीं लगाया। They just knew whom they were pleasing. वे जानते थे कि किसको वो प्रसन्न कर रहे हैं, They just held on to God. परमेश्वर को धर कर रहे वो। So what? Daniel needed to go to the lion's den. तो क्या हुआ अगर दानियल को जो है सिंहों के मान में जाना पड़ा? He was put into the lion's den. उनको सिंहों के मान में डाला गया। So what? Even Shadrach, Meshach, and Abednego entered even the fiery furnace. तो क्या हुआ अगर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जो है वो धधकती हुई भट्टी में डाले गए, And Daniel came without a scratch. और दानियल जो है बिना कोई खरोच के बाहर So आए। also Shadrach, Meshach, and Abednego came without
a hair on their body being burned. और वैसे ही शद्रक, मशक और अबेदनेगो जो है बिना उनके शरीर का एक बाल जलाए वापस वहां से भट्टी से निकले। Even you, आप भी, however high a position that you might be occupying, आप कितने भी ऊंचे स्थान में क्यों न हो, how much ever stress that you may be experiencing, आप शायद तनाव का कितना भी अनुभव क्यों ना करते हो, if you adopt this principle, अगर आप इस सिद्धांत को ले लेते हैं। what is the principle? क्या सिद्धांत है? The principle is, come what may, I will only please God. सिद्धांत ये है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं केवल परमेश्वर को प्रसन्न If you करूंगा। adopt this principle, अगर आप इस सिद्धांत को ले लेते हैं, मान लेते हैं, wherever that you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे, whatever the work that you lay your hands on, जो भी काम करने के लिए आप अपने हाथ को रखेंगे, you shall invariably excel in it. आप उसमें उत्तमता या उत्कृष्ट हो जाएंगे। Think about it. इसके बारे में सोचिएगा। Hallelujah. Hallelujah. With these thoughts in your mind, अपने मनों में ये विचारों को लेकर, with these meditations in your heart, ये मनन को अपने हृदय में लेकर go into the day, दिन में जाइएगा, making up your mind, अपने मन को बनाते हुए, recommitting yourself, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में that पुनः you will सौंपते हुए, please God and only God. कि आप केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न As करेंगे। you do that, जैसे आप ऐसा करेंगे, that you will have an amazing day. आपका दिन बहुत ही अद्भुत जाएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।